Today we are discussing one of the topic from the grammar for the standard of intermediate second year, the second language Hindi. Today we are discussing about the part number 4, the same topic name is Samas ke prakar, the means kinds of Samas in Hindi literature. In previous class we have discussed about the part number 3rd. In that third part we are learn about that part Samas number third and fourth. That's what is that? That's Dvigya Samas and Dvandva Samas. Mean what is the difference between that? The third and fourth Samas means Dvigya and Dvandva Samas. What we identified? The Dvigya Samas means this which term is that they indicate the numbers known as Dvigya Samas, and Dvandva Samas means which term they divide and decide the double numbers is known as the Dvandva Samas. इस प्रकार now we are discussing about remaining the fifth and sixth part of Samas. Mean totally Samas are divided that kinds of the Samases are the 6 kinds of Samases are there in Hindi. Mean out of 6 the 4 are already we are discussed in previous classes, and now that the last end of that the Samas, the 5th one is a Karmadharya Samas, and the 6th one Bahuvri Samas today we are discussing in this class. So that the class Karmadharya Samas, in every the main title introduce the subject. Here is the Karmadharya Samas mean this in this that subject's objective is mean subject importance which terms is the decided the term of the importance of the objective. So that's known as the Karmadharya Samas. And what are the definition and that what is the examples, the model of that terms are given as a format. The same way in the 6th one as a last Samas is a Bahuvri Samas. The Bahuvri Samas means here is the both of the terms are used in the importance in this not used not importance in this Samas, but additionally you have the totally different sense of that person known as the Bahuvri Samas. In the what is the definition and that terms the examples models are given here in this part as a format. तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज इस अंतर में हमने समास के अंतिम वाले 2 समास प्रकार के बारे में विश्लेषण करेंगे. आज का जो मुख्य शीर्षक है इन्हें समास के प्रकार, और ये वाला जो विषय है वो इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा के रूप में निर्धारित किए छात्रगण के लिए निर्धारित है, विशेष रखता है. इन पिछले अंतर में हमने समास से संबंधित 4 समास से संबंधी 3 भागों में इसका विश्लेषण देखा है, और पिछले अंतर में हमने समास से जुड़े हुए तीसरा और चौथा जिसका समास का प्रकार द्विगु समास और द्वंद्व समास का भिन्नता को देखा गया. तो उससे पिछले अंतर में क्या देखा है कि वहाँ पर अव्ययी समास और तत्पुरुष समास का परिभाषा और उसके अंतर्गत होने वाले उन्हें भेद और उसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है वो वाला पिछले अंतर में देखा. और उसके बाद वाले अंतर के अंतर्गत क्या देखा है कि भाग नंबर 3 के अंतर्गत उसका समास के तीसरा और चौथा माने द्विगु समास द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके पहचान और इसके अंतर्गत उदाहरण का नमूना देखा गया. द्विगु समास के बारे में देखा गया. द्विगु समास वो विषय है जो पूर्व पद के अंतर्गत उन्हें संख्या को महत्व देते हुए जो विश्लेषण विग्रह रूप होता है उसको द्विगु समास कहते हैं. जैसे चौराहा, 4 राहों का माने रास्तों का समूह. इस प्रकार से पहला वाला
चार रास्तों का जो समूह जो होता है, चार रास्ते, चार वाला जो संख्या है और रास्ता जो होता है वो दूसरा उत्तर पद है, ये पूर्व पद है। इस प्रकार से पूर्व पद के जो शब्द है, पूर्व पद जो होता है संख्या को जो बताने वाला विषय है, तो उसको हम संख्या को बताने वाला द्विगु समास जैसा निर्धारण करें। इस प्रकार से द्वंद्व समास के अंदर जब देखा गया तो द्वंद्व समास में ये जो है समूह को बताने वाला मैंने दिया गया समास पद के यानी शब्दों के बीच योजक जो जोड़ा जाता है, योजक के बीच स्थान में किसी भी योजक चिन्ह जैसे क्या बताया या अथवा अने और इस शब्द के जोड़कर समास पद का विभाजन जो करता है तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी पहचान के लिए सरलीकृत करने के लिए उद्देश्य क्या बताया जाता है, पहचान कैसे की जाती है, दो शब्दों के बीच यानी और अथवा या जैसे शब्द आ जाते हैं जिसको हम व्यंजन योजक शब्द कहते हैं, ऐसे वाले की पहचान किस प्रकार करनी चाहिए द्वंद्व समास में। या दो शब्दों का द्वंद्व रूप से बताया प्रयोग किया जाता है, दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द एक साथ में जोड़ जाते हैं तो एक साथ में जोड़ने के लिए योजक का चिन्ह वहाँ पर किया जाता है, वो द्वंद्व समास है। उसके बाद वाला अंतर के अंतर्गत ये देखा गया तो ये कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, माने पूर्व पद ये जो होता है यानी जिसका मुख यानी ये चंद्र जो होता है ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, जैसे बताया गया ये उत्तर पद है, ये जो होता है पूर्व पद है, ये जो होता है पूर्व पद जैसे बताया गया, ये पूर्व पद ये उत्तर पद जिसका सामूहिक रूप का तुलना के रूप में किया जाता है, जिसकी विशेषता बताती है। माने यहाँ दिया गया विग्रह रूप ये समास पद के विभाजन के विग्रह के करते समय पूर्व पद माने उत्तर पद दोनों होते हैं, तो उत्तर पद का महत्व देते हैं, महत्व जो देखा गया तो जो विशेषता को बताने वाला रूप है। पूर्व पद जैसे देखिए उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास है। ये दोनों के बीच में किसी का एक विशेष रूप में संबंध होता है और ये दोनों पदों में उत्तर पद का बड़ा महत्व होता है, ऐसे वाले समास को हम क्या कहते हैं, ये जो है कर्मधारय समास है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे भव सागर, संसार रूपी सागर, भव का माने बड़ा, संसार रूपी सागर, भव सागर माने संसार, माने भव का माने संसार और सागर किस प्रकार का सागर है, ये भव सागर है, बहुत यानी संसार बड़ा माने बड़ा सागर है, संसार रूपी सागर माने बड़ा सागर है, या गहरा का भी कह सकते हैं इसको, गहरा सागर है मीन्स डेप्थ ओशन, डेप्थ यार सी, यस है घन श्याम बादल जैसा काला, मीन कंपैरिजन दैट हाउ टू ब्लैक मीन्स दैट ब्लैकनेस इज लाइक द क्लाउड। मैंने इस प्रकार से और कुछ अन्य उदाहरण देखे गए, जैसे देखा गया तो ये है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यार द फेस द कंपेयर एज ए मून मीन इज ए वेरी ग्लोरी फेस, ग्लोलरी, ये चंद्रमुख चंद्र जैसा मुख, और इस तरह से कमल नयन जैसे कि नयन का माने आंख जो होते हैं, कमल जैसे बहुत छोटे लंबे से आंख जो होते हैं, बड़े लंबे आंख वाले को कमल नयन कहते हैं। और देह लता, देह रूपी लता मीन दैट्स कंपैरिजन दैट शर्ब एज ए बॉडी शेप, mean here cutting is divided decide and cutting that plantation cut as the structure as an animal as a human being like the different way, देह लता देह रूपी लता। और यहाँ पर
दही वड़ा मीन दही में डूबा वड़ा मीन इसी वाले को हम दही वड़ा, इसकी वड़े की विशेषता को बता रहे हैं। यहाँ पर देह लता का विशेषता क्या है? इन विच शेप दैट shrub or herb as a shape of the human body मीन कमल नयन समान नयन मीन हाउ टू आइस दैट लाइक एज ए लोटस लाइक दिस। यार कंपैरिजन किसी भी एक विशेषता को तुलना के साथ में बताते हैं तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं, है ना। इसे लाइक यार टोटली विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास इसको कहते हैं, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। जिसके रूप में क्या बताया? विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास means this shortly we say as a कर्मधारय समास है। ये टोटली इज नोन एज ए विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास लाइक दिस वन। ओके, सो इस प्रकार यहाँ पे नील कमल, नीला कमल माने नीले रंग का कमल। यार नीला कमल मीन्स नीले रंग का कमल लाइक दिस। व्हाट वन? नील कमल मैंने नीला कमल यानी नीले रंग का कमल। लाइक दिस वन, दिस इज द वन ऑफ द समास part last but one this one as a कर्मधारय समास। द लास्ट समास इज कॉल्ड एज ए बहुब्री समास। इस समास के अंतर्गत क्या बताया? जिस समास के दोनों पद माने कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान है, जिसमें कोई प्रधानता नहीं होती है वो, और समास पद के अर्ध के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्ध माने अन्य अर्ध प्रदान हो। मीन्स हियर इज द समास पद में जो दिया गया उसके अर्ध के अतिरिक्त अर्ध, यानी न तो उसका पूर्व पद की प्रधानता है मान्यता है, न दूसरे पद की उत्तर पद की मान्यता है, बल्कि दोनों जुड़ के जब विग्रह विभाजन किया जाता है तो उसके अंतर्गत अन्य अर्ध, मैंने इसको क्या बताया? सांकेतिक अर्ध। सांकेतिक अर्ध माने अन्य अर्ध का प्रधानता होती है, इंपॉर्टेंस होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बहुब्री समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताया गया, ये जो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मैंने नीला है कंठ, कंठ का माने यहाँ पर थ्रोट, मैंने जिसका नहीं वो जो है शिव है। शिव भगवान के अंतर्गत जो विशेषता है उसका कंठ जो होता है नीले रंग का होता है, ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं? नीलकंठ भी। मैंने ये शिव को नीलकंठ के रूप में माने इसका कंठ नीला होता है उसको हम नीलकंठ कहें। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, लोचन माने गाल, जिसके गाल लोचन जो होते हैं अच्छे होते हैं उसको हम मेघ नायनी का मेघनाथनी की पत्नी। मेघनाथ एक ऐसा पवित्र विशेष व्यक्ति है जिसके पत्नी का गाल बहुत ही सुंदर होते हैं। इस प्रकार सुलोचना ये सुंदर, ये सुलोचना कौन है? मेघनाथ की पत्नी है। उसको क्या बताया गया? जिसके सुंदर गाल होते हैं उसको सुलोचना, जैसा सु का माने अच्छे, लोचन का माने गाल, सुलोचन का माने अच्छे गाल वाली, जिसको हम मेघनाथ की पत्नी है। और हम लंबोदर, लंबा है उदर माने उदर का माने पेट, जिसका उदर माने स्टमक बड़ा होता है उसको लंबोदर कहते हैं। जैसे श्री क्या होता है? श्री गणेश जी जो है भगवान गॉड है गणेश, इस लंबोदर कहते हैं। इसका उदर माने पोट्टा, मीन जिसको हम कहते हैं कि जो स्टमक बड़ा होता है बढ़िया बोला। नहीं, जलज, जल में जन्म लेने वाले, जल का माने वाटर में जो वाटर प्लांट है जिसको हम लोटस कहते हैं, तो ऐसे वाला जो जल में जन्म लेने वाला जो कमल पुष्प है, जो इस वाला जो कमल जो है पानी पे रहने वाला, मीन वाटर रूट आर ऑन द वाटर, मीन्स द लोटस लिव ऑन द अपसाइड ऑफ अपवर्ड ऑफ द वाटर ओनली, it can live, it's called known as a water plant.
ओके, जलज, जल में जन्म लेने वाला, जिसको हम कमल कहते हैं। और इसीलिए दशानंद, दश है आनंद माने मुख, जो फेसेस है, 10 फेसेस वाला जो पर्सन है वो है रावण। रावण जिसको हम दिवाली के दिन इसको जो जलाया जाता है, और इस तरह से जो है रावण माने दशानंद, दश का माने 10, दश का माने 10, हाँ 10 माने 10, दश का माने 10, 10 आनंद, आनंद का माने मुख, आनंद वाले मैंने क्या होता है दशानंद, जिसको रावण कहते हैं। जिस तरह से पंकज, पंक माने कीचड़, पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज, जिसको हम लोटस को कहते हैं, जिसको कमल कहते हैं। इसको एक तो क्या कहा गया, क्या है जलज बताया गया, और जो होता है ये वाला जो होता है पंकज, पंक में माने जन्म लेने वाला, पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल का पुष्प ही होता है। और इसी तरह से पीतांबर यानी पीला है जिसका अंबर, मैंने अंबर का माने वस्त्र, जिसका वस्त्र जो पहने वाला धारण जो ड्रेस है वो येलो कलर होता है, मीन गोल्डन कलर होता है। वो अक्सर जो होता है यूज करने वाले जो श्री कृष्ण आशय है, जो लॉर्ड श्री कृष्ण, लाइक कंपेयरिंग एज ए व्हाट वन, एज ए पीतांबर, पीतांबर माने पीला अंबर वाला, पीला वस्त्र को धारण करने वाला जो श्री कृष्ण है। मीन इस प्रकार एक विशेष गुण को संकेत करने वाला जो व्यक्ति, यानी व्यक्ति में होने वाले गुण को एक विशेष नामकरण से बताया गया, तो ऐसे वाले को हम क्या है तत् बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि का माने भिन्न अर्थ देने वाला जो शब्द रूप होता है वो बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर जो देखा गया कर्मधारय में जैसे हर दूसरा जो व्यक्ति का जो हर दूसरा माने प्रधान जो किसकी दी गई, उत्तर पद की दी, उत्तर पद की विशेषता के लिए तुलना जो पूरा पद जो होता है उन्हें उत्तर पद की विशेषता को बताता है। माने यहाँ पर प्रधानता जो होती है उत्तर पद की होती है। जैसे उदाहरण के रूप में चंद्रमुखी माने जिसका मुख माने चंद्र के समान हो, चंद्र के समान मुख वाला, माने इस प्रकार से जो सेकंड वन जो होता है मुख वो किसके जैसा है, कंपैरिजन एज ए व्हाट मून, लाइक हियर देह रूपी लता, माने लता, ये किसकी इंपॉर्टेंस बताया गया, हियर से लता, ये इंट्रोड्यूस अबाउट द शर्ब, व्हाट टाइप ऑफ शर्ब, इट्स ए शेप ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पे जो है दही वड़ा किसका बताया जा रहा है, वड़ा का जैसा विशेषता है। ये जो होता है वो उत्तर पद है, दही जो होता है वो पूर्व पद है। मैंने दही में डूबा हुआ वड़ा, वड़ा के विषय कैसा वड़ा है, वो जो दही में डूबा हुआ है, मीन पर्टिकुलरली द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्ड, लाइक दिस इज द वड़ा। मीन इस प्रकार है नील कमल, मैंने कमल नीला कमल, नीले रंग का कमल, मैंने जो कमल के अंदर इन लोटस इन डिफरेंट कलर ऑफ कलर लोटस आर देयर, मैक्सिमम द कलर इज a lotus color is as a pink, but it is a separate and special the lotus as a which color as a having that blue color, that's a visheshita, mean the color having the lotus having the particular color. So that in this one word is introducing, the term is introducing for that lotus only, माने सेकंड टर्म, माने यहाँ पर उत्तर पद की विशेषता क्या है, नीले रंग का होना है। इस प्रकार से क्या है कर्मधारय समास विशेषण यहाँ पे देता है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। यहाँ पे विशेषता किसकी विशेषता है, ये दूसरे उत्तर पद के विशेषता पूर्व पद के रूप में विशेषता के रूप बताया जाने वाला ये वाला होता है। और बहुव्रीहि समास में जिसमें एक जिस व्यक्ति के अंतर्गत रहे गुण को, विशेष गुण को अन्य अर्थों में विभाजन का करते हुए जो शब्द में प्रयोग किया है वो वाला जो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, नीले कंठ वाला जो शिव भगवान है। और इसे लंबोदर, जिसका अंबर जिसका उदर जो लंबा है मैंने मोटा है, तो इस वाले को लंबोदर, जिसको श्री गणेश जी हैं। इस प्रकार जिसका उदाहरण और इसके उदाहरण परिभाषा के साथ आज इस अंतर के अंतर्गत क्या होता है, समास का समापन हो रहा है। मीन अप टू हियर दैट्स समास काइंड्स ऑफ समासेस, मीन टोटली 6 काइंड्स ऑफ समासेस आर
over. Okay, thank you. You should do practice something. Here not only these words are there, but here this this model. What words are there? You should be create and here and prepare one of the list. And that's you practice. If you have any doubts, you clarify that. Okay, thank you.